السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج ملک کے اندر وہی جو ہلچل مچی ہوئی ہے. مختلف سیاسی جماعتیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ میں احتجاج کروں گا, کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کا احتجاج فضول ہے, اور اگر آپ نے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. غالباً گورنر راج اور دیگر معاملات کی طرف اشارے ہیں, اور اس وقت شہری جو ہیں وہ مختلف مقامات پر مختلف وجوہات کی وجہ سے پریشان بھی نظر آتے ہیں. چاہے وہ سندھ کی بات کریں تو جو انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے شہری چاہتے ہیں کہ مختلف حوالوں سے کام میں مزید بہتری آئے. لیکن آج ایک ایسی چیز ہوئی جس نے پاکستانی قوم کے موڈ کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے, اور یہی ساری جو پریشانی اور الجھنیں تھیں کم از کم کچھ دیر کے لیے دور ہو گئی ہیں. اور وہ خوشخبری جو تھی, پاکستان سیمی فائنل میں جیتنے کے بعد فائنل میں پہنچا ہے, اور اس خوشی نے پاکستانیوں کے چہروں کو کھلکھلا کے رکھ دیا ہے. اور اسی کھلکھلاہٹ کے ساتھ پاکستانی خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب چلیں کوئی ایک خوشی کی خبر تو ہمارے پاس آئی ہے, اور یہ خوشی کی خبر ایسی ہے کہ جس کے بعد ہم اپنے ان معاملات جس میں الجھے ہوئے تھے وہ کم از کم کچھ دیر کے لیے بھلانے میں کامیاب تو ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پر پاکستانی قوم نے آ کر متفقہ طور پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اور یہ خوشی جو ہے کتنی بڑی خوشی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ بابر اعظم بھی کہیں کہ جناب میں بھی مستقبل میں اگر میں ورلڈ کپ جیت جاتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آؤں گا اور وزیر اعظم بنوں گا. کہیں ایسا تو نہیں ہونے جا رہا. لیکن بہرحال اگر جو سیمی فائنل انڈیا کا ہونے والا ہے, بہت سارے پاکستانی اس وقت یہ دعا کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ سیمی فائنل سے فائنل میں پہنچے, اور جو فائنل ہے پاکستان اور انڈیا کا ہو جس میں پاکستان فتح یاب ہو اور آگے کی سمت میں بڑھے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستان کی جانب سے کچھ جو شہری ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوں, دلوں کی دھڑکنیں مزید تیز ہو جائیں گی یقیناً اگر یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ آج ہم اپنے جو موضوعات ہیں اس کو تو لے کر چلیں گے, لیکن پاکستانی ٹیم کی جو یہ بڑی خبر ہے اور خوشی کی بات ہے اس پر ہم اپنے مہمانوں سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید روشن علی وارثی صاحب, تجزیہ کار ہیں. جناب روشن صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ان کے ساتھ مسرت نیازی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں. جناب مسرت صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائی ہیں. وارثی صاحب ایک بڑی خوشخبری ہے, پاکستان جیتا ہے اور فتح یاب ہونے کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ جو لوگ ہیں ان کی امنگیں مزید آگے کی طرف چلی گئی ہیں. سر کیا کہیں گے پاکستانی قوم کی جیت پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. دیکھیں آج بہت بڑا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے سب کو خوشیاں دیتا رہے. اللہ تعالیٰ خوشیاں دینا چاہتا ہے مگر ہم اپنی خوشیوں کو خود ہی خراب کرتے ہیں. اللہ نے کہ ہمیں اتنا اچھا پیغام دیا, آج پورا ملک جو ہے نا ایک جگہ متحد ہو گیا ہے. میں چاہتا ہوں سیاسی لوگ بھی ایک جگہ متحد ہو جائیں, اور مجھے لگتا ہے کہ سیاسی لوگ متحد ہیں, مگر کیونکہ ظاہر ہے جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو الیکشن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, مگر اس کو نیگیٹو نہ لیا جائے. عوام کو چاہیے کہ کسی کی طرف سے دل نہ برا کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے محبت سے رہیں, اور وہ اس کو بالکل بھی ان کو پوری دنیا میں یہ میسج ہماری طرف سے نہیں جانا چاہیے کہ ہم لوگ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہیں یا لڑائی کرتے ہیں یا ہم لوگ دشمن ہیں. بالکل نہیں سوچنا چاہیے. یہ ایک پروسیس ہے, یہ بھی ایک خوبصورتی ہے ہمارے بھی جو جمہوریت کی. تو جمہوریت کی خوبصورتی کو خوبصورتی تک رکھیں, انتقام کی طرف مت لے کے جائیں. اور میرا خیال میں کوئی انتقام چاہتا نہیں ہے, مگر یہ بیرونی سازشیں جو ہیں نا وہ شاید اس کے اندر انوالو ہوتی ہیں. الحمدللہ ہمارا ملک متحد ہے, متحد تھا, متحد رہے گا. اور انشاءاللہ اب یہ پاکستان کی جو جیت کی بات کی ہے, یہ اللہ نے ہمیں اتنی اچھی خوشخبری دی ہے, تو یہ سمجھ لیں کہ آج عوام بہت خوش ہے, ہم سب بہت خوش ہیں. آج سب ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور ناممکن کو اللہ نے ممکن بنا دیا. یہ اللہ کی شان ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے, ہمارا بلیو ہے, تو کیا اب آگے ہمارے ملک کی حالات صحیح نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہوں گے. یہ ان لوگوں کو دھول چاٹنی پڑے گی جو لوگ اس کے لیے غلط خبریں پھیلا رہے ہیں یا غلط خبریں سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارا ملک خراب ہو جائے گا. نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہوگا. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ ہماری اپنی ہیں, یہ ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ سب مل جل کے اسی طریقے سے محبت سے, جیسے کرکٹ کی ٹیم ایک جگہ پہ ہو گئی, اسی طرح سے ہماری سیاسی جماعتیں سب ایک جگہ ہو جائیں, ہمارا ملک بالکل ترقی کی طرف جائے گا. بالکل. اب تو لگتا بھی ایسے ہے کہ اب سیاسی جماعتوں کو مل کر ہی چلنا پڑے گا, ورنہ کچھ منظرنامہ ایسے ہی لگ رہا ہے. دیکھیں ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کسی بھی جگہ. دیکھیں جب اگر کوئی کمپٹیشن اسکول کے اندر جو کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ ایک سے بڑھ کے آگے ترقی کی طرف جائیں. تو ایک پروسیس ہے, پروسیس کو نیگیٹو نہ لیا جائے, اس کو پازیٹیو لیا جائے. یہ ملک کی بہتری کے لیے جتنی سیاسی جماعتیں سب ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ادارے بھی ہمارے ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. تو
इंशाल्लाह। और एक चीज़ और बड़ी आज अच्छी खुशाइन बात हो गई, वो ये हो गई कि वो इसहाक डार साहब जो हमारे वज़ीर ख़जाना है, माशाल्लाह वो उन्होंने एक कदम इस तरफ बढ़ाया है, क्योंकि देखें मैंने कहा ना, ये पाकिस्तान की जितनी जमातें हैं ये मुल्क की तरक्की का सोचती हैं, बेहतरी का सोचती हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग नेगेटिव बात करते हैं, किसी सियासी वाबस्तगी होती है वो उनकी बात करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो आगे की समझ में बढ़े, बिल्कुल यही दुआ हमारी भी है। और मुसरत साहिबा से जान लेते हैं। मुसरत साहिबा, यकीनन आपके नाम का ही एक लाज रखी है, लोग काफ़ी मुसरत में हमें नज़र आए, खुश नज़र आए कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल से फाइनल में पहुंचा है। क्या कहेंगी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात दरअसल ये है कि बहुत खुशाइन बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम को बड़े टाइम बाद एक अच्छी खबर मिली है क्रिकेट की तरफ से, लेकिन खुदा ना करे कि उसको 92 से हम कंपैरिजन करें कि अब जो है ना ये हमारा जो एक पहले निकम्मा कप्तान आया, वो समझ रहा था कि मैं सियासत का जो है ना किंग हो जाऊंगा, अनाड़ी था, अनाड़ी है और अनाड़ी रहेगा। और क्रिकेटर का मतलब ये नहीं, देखिए हर शख्स की अपनी एक फील्ड है। अब मैं वकार भाई आपकी सीट पर आकर एंकर नहीं हो सकती हूँ, ठीक है, और जो काम मेरा है, जो मेरा प्रोफेशन है, वो मेरा ही प्रोफेशन हो सकता है, उसको मैं बेहतर तरीके से ले सकती हूँ। एक खिलाड़ी है, अल्लाह ने एक अगर हमारे पास बाबर आजम खेल रहे हैं, एज अ कैप्टन है, उसको अल्लाह पाक जितवाए, और हमारी सबकी ख्वाहिश है, हमारे मुल्क की ख्वाहिश है कि जीते। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो कहे कि जी मैं बहुत बड़ा हीरो बन गया हूँ और अब मैं अपनी क्रिकेट को छोड़ के, अपने प्रोफेशन को छोड़ के मैं उस पुराने अनाड़ी की तरह जो है ना आके सोचूं कि वज़ीर आज़म बन जाऊँ। हर एक का हक है, हर एक का हक है, लेकिन हम मेरी दुआएं जो है ना अपनी टीम के साथ। ये पाकिस्तानी मेरी अपनी ज़ाती विश है, मैं बहुत क्रिकेट शौक से देखती हूँ। मेरी अपनी ज़ाती विश है कि हमारा फाइनल इंडिया से हो और हम इंडिया को धूल चटाएं और उसको बताएं कि पाकिस्तानी कौम और के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ दुआएं भी हैं, और अल्लाह पाक का जो आसरा है हमारे पास। जब हम दुआएं लेकर बैठते हैं ना, तो आप कि हमारे सामने कुछ नहीं चलने वाली। और इंशाअल्लाह ये मेरे बच्चे, ये मेरे पाकिस्तानी कौम के बच्चे जो है ना बहुत अच्छा खेलते हैं। और स्पेशली हम जब इंडिया के सामने होते हैं तो हर एक प्लेयर की कोशिश होती है कि मेरी जो ना कंट्रीब्यूशन जो है वो अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो एफर्ट्स अपनी ज़ात के लिए नहीं करते हैं वकार भाई, वो चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ। अभी वो कोई भी क्रिकेटर कहेगा कि यार मैं अच्छा खेल लूँ तो मेरा नाम होगा, लेकिन वो उस वक्त कहते हैं कि मेरे मुल्क का नाम हो। तो बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रेंथ लेकर, बहुत अच्छे जज्बे के साथ मेरी टीम इंशाल्लाह उतरेगी और पाकिस्तानी टीम इंडिया को, अगर इंडिया से मुकाबला होगा तब इंडिया हो या जो भी नहीं जो भी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया से हो और हम इंडिया से जीते और बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। उस वक्त मुकाबला भी बड़ा तगड़ा हो जाता है, मज़ा आता है उस मुकाबले में मज़ा होगा। चले। अच्छा वारसी साहब, अभी आप इस खुशखबरी के साथ ही आप एक और खुशखबरी का भी जिक्र कर रहे थे। आप कह रहे थे कि और भी खुशखबरियाँ जो हैं पाकिस्तान को मिली हैं। सर क्या कह रहे थे आप? सूद के हवाले से भी जिक्र कर रहे थे आप। देखें, खुशखबरी ये है कि हमारा मुल्क जो है ना एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से वजूद में आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सियासी जमातें जितनी भी हैं वो बड़ी अरसे तक कोशिश कर रही थी कि ये सूदी निज़ाम से जान छोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इसहाक डार साहब जो है ना वो टीवी पे आके ख़िताब कर रहे थे और उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही की कि भाई हम पूरा ज़ोर लगा रहे हैं कि किसी तरीके से सूदी निज़ाम ख़त्म हो, और उसमें जो उनकी तरीक़ाकार है उसको ज़ाहिर है वो करेंगे। तो वो उस तरफ एक पेशकदमी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक दिन है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए, कि अगर हमारी कोई मजबूरियाँ थी शायद वो ख़त्म हो गई हैं। अब हमारी सियासी जमातें जो हैं वो इस तरफ सोच रही हैं, सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की बातें कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ जहाँ पर एक खुशखबरी हमको अल्लाह ताला ने अगर से कि ये देखें, ये हमारी जो बहन है इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि इनके भी दिलों में कोई नफ़रतें नहीं है। ये जो पीपल्स पार्टी है या कोई PDM की जमातें, ये नफ़रत वाली जमातें नहीं है। PTI की जमात नफ़रत वाली जमात नहीं है। ये हमारी सोच है, हमारी सोच में नफ़रतें हैं। हमको अपनी सोच बदलनी होगी। क्यों मेरी बहन? ऐसा ही है ना, हमें बिल्कुल अपनी सोचों को चेंज करना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को बहन भाई नहीं समझेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जा सकते। देखिए, सियासत को जो ना वो नफ़रत में नहीं भरना चाहिए। सियासत को ये समझें कि ये एक इबादत है।
सियासत को इबादत समझें। देखें, एक इसहाक डार साहब किसके लिए कर रहे हैं? हम पूरे 22 करोड़ आवाम के लिए कर रहे हैं। अगर ये पीपल्स पार्टी अगर कोई अच्छा काम करती है, जैसे बसें चला रही है और भी काम है, बल्कि ये तो सबकी मर्जी शामिल है ये जो सूद का निज़ाम ख़त्म करने में, तो हम तो इसको वेलकम करते हैं। तो मैं तो इन सबको सलूट करना चाहता हूँ कि देखें, ये हमारे 22 करोड़ आवाम का इन्होंने सोचा। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो जमातें सोच रही हैं सूद का निज़ाम ख़त्म करने के लिए, उसकी वजह ये है कि ये सब अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं। देखें, बाहर की ताकतें, बैरूनी ताकतें हमको ग़ुलाम बनाना चाहती हैं, मगर हमारी ताकतें उन ग़ुलामी से जान छुड़ाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें। अल्लाह को खुश करने का तरीका ये है कि आप सूद से जान छुड़ाएं, जो कि अब इन्होंने सोच लिया। देखिएगा अब ये करेंगे ये लोग। ठीक है, नहीं अच्छी खबर है, बल्कि बड़ी खबर है कि सूदी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा से जंग कहलाते हैं और खुदा से जंग कोई भी ना कर सका है और ना कर सकेगा। मुसर्रत साहिबा, इस वक्त जो शहर कराची है, सुबह से नए उस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि हम जो है वो मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कुछ मिस प्लानिंग भी हमें नज़र आ रही है। बसेस भी इस वक्त लेकर आ रहे हैं, क्या आप इस बारे में क्या कहेंगी? इस वक्त जो बसेस आ रही हैं, चाहे वो ऑरेंज बस की बात कर रहे हैं आप, रेड बसेस, बिल्कुल सही, अच्छी चीज़ है। अब इलेक्ट्रिक बसेस आप लेकर आए, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो या मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो बसेस जो हैं वो शहर कराची के रूट्स के हवाले से नहीं लग रही हैं, क्योंकि बड़ी बसेस हैं। रूट और उसका जो मामला है उसको किस तरह से बेहतर करेंगे आप लोग? देखिए वकार भाई, मेन चीज़ है अभी ट्रायल के लिए चलाई गई हैं, और मैं समझती हूँ कि जब कोई ऊँट रखता है तो दरवाजे भी उसके ऊंचे ही रखता है। तो जब देखें नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट होने, जब देखिए वकार भाई, जब ऊँट गवर्नमेंट लाई है ना तो दरवाजे भी ऊंचे करेगी यकीनन। जब अगर इस किस्म की इलेक्ट्रिक बसेस लाई हैं तो यकीनी बात है कि वो सिस्टम भी, चाहे रोड्स का हो या दूसरे मतलब मराहिल हों, उस पर भी अमल होगा। तो यकीनी बात है अब फ़ायदा मैं और आप उठा रहे होंगे, हमारी औलादें उठा रही होंगी। बिल्कुल ठीक है। वारसी साहब, मुसर्रत साहिबा तो कह रही हैं कि हम बेहतरी की तरफ मुख्तलिफ इक़दामात जारी रखेंगे, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि शहर कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस काबिल है कि मज़ीद मामला जो है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे क्या? मैं अगर इसकी बात को थोड़ा उससे पहले से शुरू करूं तो शायद मुनासिब होगा। ये मेरी बहन बैठी हैं वो, तो मैं इनसे बताता हूँ कि देखें, हमें 2-3 सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि हमें सेवरेज सिस्टम जो हमारे पाकिस्तान का, हमारे कराची का स्पेशली, उसको सही करने की ज़रूरत है। हमारा सेवरेज सिस्टम सही होगा, रोड उसके बाद सही होंगे। आप समझते हैं कि रोड अगर बज़ाहिर आपको चौड़े और सही नज़र आएंगे, नहीं होंगे। जैसे ही बारिश होगी सेवरेज सिस्टम फेल हो जाएगा, उसके बाद फिर आपकी ये सब चीज़ें दोबारा नाकारा हो जाएंगी। बुनियादी चीज़ ये है कि आपको सेवरेज सिस्टम कराची का सही करना पड़ेगा, ड्रेन सिस्टम सही करना पड़ेगा। उसके बाद आपके रोड में जैसे पानी आएगा बह जाएगा, आपके रोड ख़राब नहीं होंगे। एक तो ये बुनियादी चीज़ है। इसका दूसरा फ़ायदा मैं और बताऊं, क्योंकि देखें मेरा ताल्लुक जो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से। अब जो कराची में जो जगहें जो ना ख़त्म हो गई है, अब हमको ज़रूरत है वर्टिकल एक्सपेंशन की। अब वर्टिकल एक्सपेंशन पे जाने के लिए आपको फिर ड्रेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें जब ड्रेन की ज़रूरत, उसमें चाहे वो पानी के मामला तो, चाहे पानी आना हो या निकासी। जी देखें आने वाली बात तो बात की बात है। मैं बात कर रहा हूँ निकासी की। आपको पता है ये डिफेंस जो है वहाँ पर कितने ऐसी जगहें हैं जहाँ पर के पानी आ गया था, वहाँ पे चीज़ों का बहुत नुकसान हुआ लोगों का। तो अब वो भी DHA भी एक बहुत बड़ा अच्छा इदारा है, जहाँ जो उनकी कमियाँ थी वो अब दूर कर रहे हैं ना। इसी तरीके से जो हमारी पीपल्स पार्टी यहाँ पर है माशाल्लाह, मैं चाहता हूँ कि इनको, मैं सिर्फ तवज्जो इनके तौर से दिलाना चाहता हूँ कि आप कराची में सेवरेज सिस्टम सही करें, फिर उसके बाद जो हाउसिंग स्कीम जो है उसके ऊपर तवज्जो दें। ठीक है जनाब, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहीं से कंटिन्यू भी करते हैं और बिल्कुल आते हैं वारसी साहब, यहीं से कंटिन्यू भी करेंगे। और एक छोटे से ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।